Hello students, good morning. How are you all? I hope that you all are fine. So let's start our today's lecture. Now, our next sum is miscellaneous exercise second. Our chapter number 2's miscellaneous exercise 2, first sum. Question 1. The relation f is defined by fx is equal to x square, where 0 less or equal to x less or equal to 3, and 3x, 3 less or equal to x less or equal to 10, and the relation g is defined by gx is equal to x square, where 0 less or equal to x less or equal to 2, 3x, where 2 less or equal to x less or equal to 10. Show that f is function and g is not function. Students, we have given two relations in our question. First one is f and second one is g. And in both relations, we have given two cases. Okay, students. There are two cases in each relations. So we prove that the given two relations in which the first relation f is function, but the second relation g is not a function. That we have proved right now. So let's see. Firstly, I talk about first relation, which is relation f. Okay, then after we talk about our next relation, which is relation g. Okay, students, so let's see. Firstly I mentioned the given relation f. Here fx is equal to x square, where 0 less or equal to x less or equal to 3, and 3x, where 3 less or equal to x less or equal to 10 be a given relation. सबसे पहला मैंने जो हमारा रिलेशन था उसको मैंने मेंशन कर दिया. Now therefore domain of f is equal to 0 close 0,10. obvious है, क्योंकि हमारा जो x की जो वैल्यूज है, डोमेन मतलब हमारी जो x की वैल्यूज होती है वो, तो x की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 10 तक जा रही है. तो हमारा जो इंटरवल होगा क्या होगा? 0 से 10 तक का होगा, और वो भी क्या क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब ये जो दोनों वैल्यू होंगे वो भी इंक्लूड होंगे. सो देयरफॉर द डोमेन ऑफ f इज क्लोज 0,10. नाउ for checking our the relations function or not, we put the values of domain one by one in our function. Okay, now students, अभी हम x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, बराबर, तो रिलेटेड टू दैट फंक्शन में हम पुट करेंगे. सपोज के x की वैल्यूज हम 0 से 3 तक पुट करेंगे, इसका मतलब 0, 1, 2, 3 ये 4 वैल्यूज हम पुट करेंगे. तो हम किस में पुट करेंगे? तो हमारे फर्स्ट केस में. समझ में आ रहा है? और जो 3 है x की वैल्यू, वो कॉमन है दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी है. इसका मतलब 3 से लेकर 10 तक की भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम वो किस में करेंगे? तो हमारे सेकंड केस में करेंगे. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. सो नाउ पुट द वैल्यूज. फर्स्ट, फॉर x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फॉर x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1. फॉर x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4. Similarly, for x is equal to 3, f of 3 is equal to 3 square, that means 9, and also f of 3 is equal to 3 into 3, that means 9. So आप देख सकते हैं कि जो हमारा x is equal to 3 है, दोनों केस में हमने पुट किया तो भी आंसर हमें सेम ही मिला. सो यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो यहाँ तक कि हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा तो जो फंक्शन आने वाला है, बराबर, वो हमारा ट्रैक पर ही है. बराबर. नेक्स्ट, फॉर x is equal to 4, f of 4 is equal to 12. कैसे 12? क्योंकि x is equal 4 हमारे सेकंड केस को बिलोंग करता है, इसलिए 3 into 4 दैट मीन्स 4. और सिमिलरली हम x is equal to 5 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? वी गेट 15. एंड सिमिलरली इफ वी पुट x is equal to 6 then we get 18. Okay, and you observe that students, if you put any number from our domain, we get a unique image for that number or that element. You see, so the given relation is satisfy our function's condition. So we say that the given relation is a function, and I show you by our array diagram. Okay students, मैं आपको कैसे बताता हूँ, हमारे array diagram से आपको explain करता हूँ, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा. ये हमारा डोमेन, ये को डोमेन, और ये उसका रिलेशन f. चलो, डोमेन में हमारे जो मेंबर्स है वो मैंने यहाँ लिख दिए 0, 1, 2, 3, 5 अप टू डॉट, और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट मिल रहा है उसके मैंने मेंशन कर दिया. चलो, 0 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4,
3 is related to 9 and also 3 is related to 9. उसके आ जाए 4 is related to 12, 5 is related to 15 and obviously 6 is related to 18, 7 is related to 21 up to, that means the given function is a 1 1 function, क्योंकि आप जो वैल्यू पुट करें आपको आंसर मिल रहा है, उसके बाद जो सेकंड पुट करें उसके बाद जो आंसर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बराबर. मतलब एक बार जो आपने वैल्यू पुट किया उसका आंसर एक ही आ रहा है, मतलब 1, if you put 1 then you get 1 1 1 1 1. समझ में आ गया? So hence for all x where x belongs to close 0 10, every element of domain has a unique images in our codomain, therefore the relation f is a function. Okay, चलो अभी हम सेकंड जो रिलेशन है उसको नॉट फंक्शन प्रूफ करना है तो वो कर देते हैं. सबसे पहले मैं हमारा जो फंक्शन है वो रिलेशन है वो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ. एंड gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2 एंड 3x 2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 10. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है, समझ में आ रहा है? मतलब 3 जो वैल्यू है वो सेकंड केस में इंक्लूड हो गया, सेकंड केस में डाइवर्ट हो गया. ओके, चलो बी अ गिवन रिलेशन, therefore same as our relation f, the domain of f is same as the domain of g, that means domain of g is equals to close 0 10. चलो अभी हमें ये प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा रिलेशन g है वो नॉट फंक्शन है. सो ऐसे तो एक मेंबर तो ऐसा होगा, बराबर, जिसका आंसर जिसके इमेजेस एक से ज्यादा आएंगे, है ऐसा ऑब्वियसली है. वो कौन सा एलिमेंट? तो वो एलिमेंट 2 है. नाउ फॉर x इज इक्वल टू 2 g ऑफ 2, सबसे पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि वो 2 इसको भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर 4 मिलेगा, और वो 2 जो दूसरा केस है उसको भी बिलोंग कर रहा है, मतलब वो x इज इक्वल टू 2 हम यहाँ भी हमें पुट करना है. फॉर x इज इक्वल टू 2 g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट मीन्स 6. तो आप देख सकते हैं कि 2 ऐसा एलिमेंट है जिसको 2 इमेजेस मिल रहे हैं, और वो पॉसिबल नहीं है किसके लिए? जो हमारा फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसके लिए पॉसिबल नहीं है. Here it is clear that the element 2 of domain, बराबर, जो हमारा एलिमेंट 2 है किसका? तो हमारे डोमेन का, has 2 images in codomain, और उसका 2 रिलेशन मिल रहा है ना, कोडोमेन में 2 रिलेशन मिल रहा है. और आपको मैंने बोला था कि एक का रिलेशन एक के साथ होता है तो भी अच्छा है, बराबर, एक से ज्यादा रिलेशन होगा तो तकलीफ हो जाती है. रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, बराबर. ओके, therefore the relation g is not a function. Okay, so I hope you understand. Okay students, easy है? Good. So complete student our first miscellaneous exercise, second मतलब जो हमारा चैप्टर 2 का miscellaneous exercise है, बराबर, उसका जो फर्स्ट सम है हमने कंप्लीट किया. अभी हम सेकंड पे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का सेकंड सम. इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर फाइंड f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 डिनोमिनेटर 1.1 माइनस 1. सिंपल है स्टूडेंट्स, जस्ट हमें इसको यहाँ कंपेयर ही करना है और x के जगह पे 1.1 पुट करना है और दूसरी बार 1 पुट करना है, और जो भी आंसर आता है दोनों का उस दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, बराबर. और डिनोमिनेटर में तो सिंपल सब्सट्रैक्शन ही है. सो लेट सी हियर fx इज इक्वल टू x स्क्वायर गिवन, ओके, जो हमने क्वेश्चन में दिया था वो. चलो अभी हम जो हमें फाइंड करना है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. तो f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिनोमिनेटर में 1.1 माइनस 1. चलो अभी ये दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे x के जगह पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1.1 दिख रहा है. तो यहाँ पे भी मुझे 1.1 पुट करना होगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा आंसर? 1.1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1.1 माइनस 1, दैट मीन्स 0.1 हो गया. अभी 1.1 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 1.21 मिलेगा. समझ में आ रहा है? ओके, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है आंसर 1 ही आएगा. और डिनोमिनेटर एज इट इज, वी राइट एज इट इज. चलो अभी 1.21 माइनस 1 मतलब 1.21 माइनस 1 हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? तो 0.21 मिलेगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज. नाउ वी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इन रैशनल नंबर. Okay students, so we get 21 by 100 and 1 by 10, that means denominator के denominator में, that means it comes in numerator, so 1 0 is cancelled, then we get 21 by 10, 21 by 10, that means 2.1, so we get 2.1. Okay students, easy है? मजा आ रहा है?
Good. Now we see our first two sums of miscellaneous exercise second. Now our third one. I hope you enjoy these sums. Okay, students. Okay. So the third one is find the domain of the function fx is equal to x square plus 2x plus 1 denominator x square minus 8x plus 12. Okay, students. So we have to find a domain for the given function. And students, you know the function is like our rational function. We already seen a definition of rational function. The definition is fx upon gx is called a rational function. Okay, students. The function is like fx by gx. Okay, and the necessary and sufficient condition for the rational function is defined. What is the necessary and sufficient condition for the function is defined? That is, the denominator must be non-zero. Understand? The denominator must be non-zero. इसका मतलब कि हमने रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन हमने देखी थी, बराबर? तो सेम एज ऐसा ही हमारा फंक्शन है, न्यूमरेटर में fx है और डिनोमिनेटर में gx है, बराबर? तो हमें इसका डोमेन फाइंड करना. डोमेन मतलब हमारे x की वैल्यूज फाइंड करने के. हम यहाँ हमारे फंक्शन हम कौन सी x की वैल्यूज है जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यूज नहीं है x की जो हम यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं, बराबर? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइन कब होगा, जब हमारा जो रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है, मतलब हमारा gx जो फंक्शन है वो मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए. इसका मतलब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हियर fx बी अ गिवन फंक्शन. ओके, बी अ गिवन फंक्शन. चलो उसके बाद नाउ द फंक्शन f इज डिफाइंड. कब डिफाइंड होगा? इफ the denominator that means x square minus 8x plus 12 is not equals to 0. अभी ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने 8, 9, 12, 10th में तो सीखा ही होगा इसको सॉल्व कैसे करना है, बराबर? तो उसके मेथड भी यहाँ पे मैंने की है, बराबर? तो हमारे पास जो दो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? दो जीरोस. सो x माइनस 6 एंड x माइनस 2 दो फैक्टर हमें मिलेंगे. कौन से दो फैक्टर? x माइनस 6 एंड x माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो we write individually. That means x minus 2 is not equals to 0 and x minus 6 is not equals to 0. That means we get the value of x. That means the zeros is x is not equals to 2 and x is not equals to 6. That means if we take a set of real numbers but do not take these two numbers, so we subtract these two numbers from our real number and the resulting set we get, okay, which is called our domain of function. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब जो हमें दो वैल्यूज हमें मिले वो हम दो वैल्यूज नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने 2 और 6 दिया और 2 यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में पुट किया, मतलब x की जगह पे पुट किया, तो डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा? ये जो हमारा रेनी सीजन चल रहा है ना, उसमें भी बहुत सारे फटाके फूटेंगे, धड़ाके होंगे. कौन से धड़ाके होंगे? तो क्या? इन्फिनिटी नाम के धड़ाके होंगे. सिमिलरली अगर आप 6 पुट करेंगे ना तो भी आपका सेम एज इतना बढ़िया रेनी सीजन है, बारिश हो रही है, बराबर? तो ऐसे सीजन में भी धड़ाके होंगे, फटाके फूटेंगे. किसके नाम के? तो क्या? इन्फिनिटी नाम के, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. सो therefore x belongs to r minus 2,6. जो 2,6 है उसको हम r में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. therefore the final answer, the domain of f is equals to rf is equals to in a curly bracket x where x comma y belongs to f. that means r minus 2,6 जो हमारा जो फंक्शन है उसका क्या है? डोमेन ऑफ f. अंडरस्टैंड? साइकिल स्टैंड, रिक्शा स्टैंड. ओके, समझ में आ गया? गुड. नाउ आवर नेक्स्ट सम इज which is same as our previous example, same exact same, because in the previous example we seen our rational functions, we find our rational functions domain, and similarly if in this example we also find the domain of the rational function. Okay students, same as previous, just हमारा जो function जो हमारा fx और gx है, बराबर? इसका मतलब मैं कहूँगा तो हमारा जो quadratic equations है ना वही चेंज हुए, बाकी तो exact same है. चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ. हमारा क्या है? एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 21. फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to x square plus 3x plus y denominator x square minus 5x plus 4. So firstly I mention the given function, then
the condition for our function is defined. Okay students, then our condition, what is the condition? Now the function f is defined if x square minus 5x plus 4 is not equals to 0. That means the denominator gx is not equals to 0. So मैंने ले लिया, so हमें यहाँ पे quadratic equation मिला, और हमारा quadratic equation तो आपको solve करना आपको आते हैं, तो हमारे फैक्टर्स क्या मिलेंगे? x माइनस 4 तो x माइनस 1 मिलेंगे विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. इसका मतलब x माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 1. हम यहाँ पे x के दो वैल्यूज है वो नहीं ले सकते. कौन से? 1 और 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 4 के लिए दोनों के लिए हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन होगा. बराबर. अभी मैंने बोला कि रेनी सीजन है, बरसात का बारिश का मौसम है, वहाँ पे भी हमें धड़ाके होंगे, बम फूटेंगे. कौन से फूटेंगे? तो क्या? इन्फिनिटी के डिनोमीटर 0 हो जाएगा इसलिए. सो x बिलोंग्स टू r माइनस 1, 4. Therefore the domain of f is equal to df is equals to x where x, belongs to f. So final answer is r minus 1, 4. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल किया ना, सेम वैसा ही है. बराबर. कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमारा fx और gx मतलब जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी तो सेम एज इट इज है. ओके, समझ में मजा आ रहा है? बराबर. अभी हम चैप्टर के एंडिंग के तरफ जा रहे हैं. ओके, चलो गुड. Now our next sum is miscellaneous exercise second, 8th sum. Let f is equals to in a curly bracket 1, 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 3 be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b for some integers a, b. Determine a and b. Students, we have given a function fx is equal to ax plus b where f is defined by f is equals to 1, 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 3. And using this function we have to find or we have to determine the values of a and b. Okay, so let's start. Solution. Firstly, I mention the given function which is f is equals to 1, 1, 2, 2, 3 be given. And now f from z to z where fx is equal to x plus b be a given function, and I give it result number 1. Now for 1, 1 belongs to f. You know students, 1, 1 that means this pair is a member of our function f. So I take a first pair that is called 1, 1 belongs to f. So जो 1, 1 है वो हमारा फंक्शन f है ना, उसका मेंबर है. So मैंने फर्स्ट मेंबर मैंने ले लिया फॉर 1, 1 बिलोंग्स टू f. अब अभी हमें स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो पेयर है, बराबर, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x और सेकंड एलिमेंट y है. इसका मतलब क्या है? आप फर्स्ट एलिमेंट पुट करेंगे, मतलब जो x पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा. बराबर ना? सो इसका मतलब क्या होगा? ये x आप पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा. बराबर. सपोज ये 1 आप पुट करेंगे तो आपको f ऑफ 1 मिलेगा, और f ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा? 1 मिलेगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? x, y, x आप पुट कर रहे हैं और रिजल्ट आप x आपको इनपुट दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट y मिल रहा है. बराबर. सो यहाँ पे ऐसा ही है, आप 1 पुट कर रहे हैं मतलब f ऑफ 1 और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. मतलब f ऑफ 1 का आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. ओके. सिमिलरली अगर मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे f ऑफ 2 का आंसर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. ओके. सो लेट्स सी. चलो फॉर 1, 1 बिलोंग्स टू f. ओके. अभी ये x इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये x इज इक्वल टू 1 मैं इक्वेशन रिजल्ट नंबर 1 में पुट कर देता हूँ. देयरफॉर 1 इम्प्लाइज f ऑफ 1. जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे मैं 1 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस b मुझे मिलेगा. सो अभी मैंने बोला कि f ऑफ 1 का आंसर मुझे क्या मिला है? 1 मिला है, क्योंकि ये 1 आप पुट करेंगे तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 1 मिलेगा. f ऑफ 1 का आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. तो f ऑफ 1 के रिप्लेस में मैं यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू a प्लस b. सो इसको मैं ठीक करके a प्लस b इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ. बराबर. रिजल्ट नंबर 2. अभी फर्स्ट पेयर का यूज करके मुझे इक्वेशन 2 मिला. अभी मैं सेकंड पेयर का यूज करके मैं इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट करूंगा. कैसे? सेम एज इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर फॉर 2, 3 बिलोंग्स टू f. सेकंड पेयर मैंने ले लिया. अभी x इज इक्वल टू 2 में हमारे जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करूंगा x के जगह पे, x के रिप्लेस में. सो 1 इम्प्लाइज f ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b. सो f ऑफ 2 का आंसर मुझे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है. तो यहाँ पे 3 मैंने रिप्लेस कर दिया. That means a into 2a, that means 2a plus b. So 2a plus b is equal to 3. Result number 3.
सो आपको समझ में आ गया, जो हमारा एफ हमें दिया था क्वेश्चन में हमारा फंक्शन, उसमें से मैंने फर्स्ट दो पेयर का यूज करके मैंने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। कौन से रिलेशन में? ए और बी रिलेशन में, बराबर। जो हमने इक्वेशन मिला है वो किसके रिलेशन में? ए और बी के रिलेशन में हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, बराबर। ये हमारी एक्स की वैल्यू है, ये हम पुट करेंगे और ये मुझे वाई मिलेगा, बराबर। 2 इनपुट दिया और आउटपुट मुझे 3 मिल रहा है, 1 इनपुट दिया आउटपुट मुझे 1 मिल रहा है, बराबर। तो ये दो इक्वेशन मुझे मिल गए। अभी मैं क्या करूंगा? 3 - 2 करूंगा। इसका मतलब 3 इक्वेशन है उसको 2 में से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, बराबर। 3 - 2 करूंगा, 3 में से 2 को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। सो 2a माइनस है दैट मीन्स a, b minus b that means 0, and 3 - 1 that means 2. So we get a final answer is a is equals to 2. समझ में आ गया? a is equal to 2 कैसा आया? 2a में से a कम सब्सट्रैक्ट होगा तो मुझे a मिलेगा, b में से b कट होगा तो मुझे 0 मिलेगा, और 3 में से 1 कट होगा तो मुझे 2 मिलेगा। So मुझे a की वैल्यू क्या मिली? Finally we get a is equals to 2. Now we put the value of a in equation number 2. We get 2 implies a plus 2 is equal to 1. That means 2 plus b is equals to 1. 2 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस होगा, 1 - 2 दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। सो b इज इक्वल्स टू -1। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था? a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ना। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये जो दो पेयर का यूज करके हमने जो दो इक्वेशन फाइंड आउट किया ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इस एग्जाम्पल में जो हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे a और b फॉर्म में, बराबर, वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार दो इक्वेशन फाइंड आउट हमारे हो गए, उसके बाद तो सम इजी है, क्योंकि दोनों को उसके बाद तो आपने 10th में 3 मेथड आपने सीखा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हमने कौन सी मेथड अप्लाई की यहाँ पे? आई थिंक एलिमिनेशन, बराबर, और सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स के कोई भी मेथड से आप ये दोनों को सॉल्व करके ए और बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फाइनली हेंस a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बराबर, एकदम शांति से देखेंगे, इजीली है, इजी गोइंग है, समझ में आ जाएगा। ओके, गुड। Now our next sum is example number 20, which is same as previous. Okay, let f is equal to 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 be a linear function from z to z. Find fx. अभी हमने जो प्रीवियस सम किया था ना स्टूडेंट्स, सेम वैसा ही है, फंक्शन भी एज इट इज है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमारा जो fx है, fx इज इक्वल टू x प्लस बी, वो मेंशन किया हुआ था, मतलब हमें फंक्शन दिया हुआ था। यहाँ पे सिर्फ लिनियर फंक्शन बोला है। लिनियर फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ax प्लस बी हुआ ना। लिनियर फंक्शन दैट मीन्स fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। ओके, सो फंक्शन भी वही है, सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है fx। मतलब यहाँ पे हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। कौन सा एक्स्ट्रा करना है? जो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर, उसके बाद जो वैल्यूज आती है वो हमें fx में जस्ट पुट कर देनी है। a के जगह पे 2 और b के जगह पे -1, दैट्स इट। सो देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर है। Here f is equal to 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 be given. Now f is a linear function. Take fx is equal to ax plus b. That's it. Result number 1. और यहाँ से तो आपका जो प्रीवियस एग्जाम्पल वाला सॉल्यूशन है ना, यहाँ तक तो वही है। b is equal to -1 तक तो सेम एज इट इज वही है। और लास्ट हमें क्या करना है? जो a और b का जो आंसर है ना, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। दैट मीन्स fx is equal to 2 into x plus -1. That means fx is equal to 2x minus 1. सो ये हो गया आपका fx जो फाइंड आउट करना था वो। हमने अभी जो प्रीवियस एग्जांपल किया सेम वही है, सेम। उसमें हमें fx इज इक्वल टू x प्लस बी मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे हमें लीनियर फंक्शन बोला है। मतलब वहां पे हमें सिंबॉलिकली दिया था, यहाँ पे हमें वर्डिंग में दिया था। जस्ट इतना ही डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी हमारे पास 5 से 8 सम ही बाकी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।